الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز طلبہ کرام، آج کا ہمارا سبق وہ ہے نکیرہ اور معرفہ کے بارے میں۔ نکیرہ کیا ہوتا ہے، معرفہ کیا ہوتا ہے، اس کی اقسام کیا ہیں، پہچان آپ کو کیسے ہوگی، انشاءاللہ الکریم آج آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس سے پہلے آپ کو ایک سبق پڑھایا گیا تھا اسم کی 5 اعتبار سے تقسیم، تو اس میں سے ایک تقسیم اسم کی وہ تھی عام اور خاص کے اعتبار سے، یعنی اسم کے عام اور خاص ہونے کے اعتبار سے۔ تو اسی اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، نکیرہ اور معرفہ۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں عام اور خاص کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں ہیں، اسم نکیرہ اور اسم معرفہ۔ اسم نکیرہ کہتے ہیں وہ اسم جس سے کوئی خاص چیز نہ سمجھی جائے، اسے اسم نکیرہ کہتے ہیں۔ جس اسم سے کوئی خاص چیز نہ سمجھی جائے اسے اسم نکیرہ کہتے ہیں عربی گرامر میں۔ جیسے حجرن، حجرن کہتے ہیں پتھر۔ اب اس سے مراد کوئی سا بھی پتھر ہو سکتا ہے، خاص پتھر مراد نہیں ہے بلکہ کوئی سا بھی پتھر ہے۔ منزل، گھر، کون سا گھر یہ کنفرم نہیں، میرا گھر، تمہارا گھر، خاص گھر کوئی نہیں بلکہ منزل گھر۔ حصان، گھوڑا۔ حمار، گدا۔ یہ 4 مثالیں آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ سینکڑوں ہزاروں مثالیں عربی گرامر کی دنیا میں آپ کو اس کی مل جائیں گی عربی کے اندر، یعنی عام چیز کے لیے عام چیز کو نکیرہ کہتے ہیں۔ اس میں نکیرہ کی 2 قسمیں ہیں، نکیرہ مخصوصہ اور نکیرہ غیر مخصوصہ۔ نکیرہ مخصوصہ کیا ہے؟ نکیرہ مخصوصہ کہتے ہیں وہ اسم نکیرہ جسے صفت لگا کر یا کسی دوسرے اسم نکیرہ کی طرف مضاف کر کے خاص کیا جائے۔ وہ اسم نکیرہ جسے صفت لگا کر خاص کیا جائے یا کسی دوسرے اسم نکیرہ کی طرف مضاف کر کے خاص کیا جائے۔ اس کو سمجھ آئے گی آپ کو مثال کے ذریعے۔ جیسے کسرن، کسرن کا معنی ہوتا ہے محل۔ رفیعن کا معنی ہوتا ہے بلند۔ کسرن یہ بھی اسم نکیرہ ہے، رفیعن یہ بھی اسم نکیرہ ہے۔ اسم نکیرہ کی پہچان کیسی ہوگی یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو اب دیکھیے، کسرن محل، رفیعن بلند۔ اب رفیعن صفت کے ذریعے پہلے اسم نکیرہ کسرن کی صفت لگائی گئی، ٹھیک ہے، کسرن کی صفت لگائی گئی رفیعن کے ذریعے۔ تو اب کسرن یہ نکیرہ مخصوصہ ہو گیا، یعنی خاص ہو گیا۔ اگر رفیعن کو ہٹا دیا جائے، صرف کسرن کو باقی رکھا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کسرن محل۔ کون سا محل؟ اونچا محل یا پھر تھوڑا کم اونچا محل، بڑا محل، کیسا محل، کوئی کنفرم نہیں ہے نا ہمیں۔ لیکن رفیعن جب صفت لگائی تو اس نے ایک تھوڑی سی اس کے اندر خصوصیت کو پیدا کر دیا، تو اسی لیے اس کو کہتے ہیں نکیرہ مخصوصہ، یعنی نکیرہ تو ہے لیکن مخصوصہ ہے، معرفہ نہیں بنا لیکن یہ نکیرہ مخصوصہ ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ ایک اسم نکیرہ کی دوسرے اسم نکیرہ کی طرف اضافت کی جائے، نسبت کی جائے، اسی کو کہتے ہیں مضاف کرنا۔ جیسے ریش قلمین، قلم کا نب، ریش پر کو بھی بولتے ہیں اور نب کو بھی بولتے ہیں۔ تو قلم، ریش قلمین، قلم کا نب۔ اب ریش کی نسبت ہو رہی ہے قلم کی طرف، یعنی یہ جو نب ہے یہ قلم کا، پین کا نب ہے۔ تو اب اس تھوڑی سی نسبت کی وجہ سے، تھوڑی سی خصوصیت کی وجہ سے اس کے اندر جو خصوصیت پیدا ہوئی، تو اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں نکیرہ مخصوصہ۔ نکیرہ مخصوصہ کی ویسے 7 قسمیں ہوتی ہیں، 7 طریقے ہوتے ہیں نکیرہ کو مخصوص کرنے کے۔ میں نے آپ کو صرف ایک چیز یہاں پر بیان کی ہے، انشاءاللہ الکریم ایک مکمل سبق آپ کو آگے پڑھایا جائے گا جس میں نکیرہ مخصوصہ کی 7 صورتیں کہہ لیں یا 7 طریقے کہہ لیں یا 7 قسمیں کہہ لیں۔ یہ سبق آپ کو میں پڑھاؤں گا جملہ اسمیہ کے سبق کے دوران یا جملہ اسمیہ کے سبق کے بعد، کیونکہ اس کا تعلق جملہ اسمیہ سے بہت ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اسم نکیرہ کی پہلی صورت نکیرہ مخصوصہ۔ اسم نکیرہ کی دوسری قسم وہ ہے نکیرہ غیر مخصوصہ۔ نکیرہ غیر مخصوصہ یعنی وہ اسم نکیرہ جسے صفت یا اضافت کے ذریعے خاص نہ کیا جائے۔ جیسے زہرتن، زہرتن کہتے ہیں کلی کو۔ بحر، سمندر۔ اسی طرح اوپر جو میں نے آپ کو کچھ مثالیں دی ہیں نکیرہ کی، یہ ساری نکیرہ غیر مخصوصہ کی مثالیں ہیں۔ حجر، منزل، حصان، حمار، کتاب، قلم، ٹھیک ہے، جدار، غرفۃ، اس طرح اور بہت ساری
मिसालें इसकी इसमें नकरा की हो सकती हैं। तो ये नकरा गैर मखसूसा है, यानी इस इसमें नकरा को ना तो सिफत लगाकर खास किया गया, ना ही इस इसमें नकरा की इजाफत या निस्बत दूसरे इसमें नकरा की तरफ की गई। तो ये नकरा गैर मखसूसा, यानी वो इसमें नकरा जिसको खास ना किया गया। उसके बाद इसमें मारिफा। इसमें मारिफा की तारीफ क्या है? जिस इसम से कोई खास चीज समझी जाए उसे इसमें मारिफा कहते हैं। जैसे मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक नाम। और मोहम्मद एक खास जात का नाम है, ठीक है ना, इससे मुराद एक खास जात। अल किताबु खास किताब, आम किताब होगी तो किताबुन, और अल किताब का मतलब खास किताब। जैसे आप कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें सूरह बकरा की दूसरी आयत है, जालिकल किताब ला रईब फी। जालिकल किताब, वो बुलंद रुतबा किताब, वो खास किताब। खास किताब से मुराद कौन सी है? कुरान करीम। ला रईब फी, जिसमें शक नहीं, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। ला रईबा, रैब यानी जिनसे शक की ही नफी कर दी। वो ऐसी किताब है जिसमें शक किया ही नहीं जा सकता। शक क्यों नहीं किया जा सकता? शक उस चीज के अंदर होता है जिस पर यकीन ना हो। और कुरान करीम तो अपनी निशानियों, अपनी आयतों के जरिए, अपनी गैबी खबरों, फसाहतों, बलागत के जरिए इतना मुहकम है, इतना यकीन वाली चीजें इसके अंदर हैं कि इसमें शक की गुंजाइश ही नहीं हो सकती। तो बहरहाल ये इसमें मारिफा की तारीफ। अब इसमें मारिफा की भी 7 किस्में हैं। इसमें अलम, इसमें जमीर, इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुअर्रफ बिल लाम, मुअर्रफ बिल इजाफा और मुअर्रफ बिल निदा। अब इन सब की आपके सामने तारीफ मैं बयान करूंगा, लेकिन ये बात है ज़हन रख लें, इनमें से तकरीबन के असबाक हैं। यानी इसमें जमीर, इसका पूरा सबक है जमायर वाला। अस्माए इशारा का पूरा सबक है, इसमें मौसूल का पूरा सबक है। मुअर्रफ बिल इजाफा, इसमें इजाफत की अकसाम वगैरह और पूरा एक सबक है, ठीक है। मुरक्कब इजाफी के अंदर भी कुछ इसके चीजें आती हैं। उसके बाद मुअर्रफ बिन निदा, इसका भी पूरा सबक है, निदा और मुनादा के बारे में। ये इंशाल्लाह मुकम्मल असबाक आगे आपको पढ़ाए जाएंगे। अब इनकी सिर्फ तारीफ और मिसाल के जरिए थोड़ा सा आपको तारुफ बयान कर देता हूं, ताकि जब ये असबाक पढ़े आपको तो फिर अजनबियत इसमें ना हो। इसमें अलम क्या होता है? अलम कहते हैं नाम को। जैसे पूछा भी जाता है आपका अलम शरीफ क्या है, तो अलम का मतलब नाम। अच्छा जी, इसमें अलम कहते हैं वो इसमें मारिफा जो किसी खास शख्स, मकान, हैवान या किसी और चीज का खास नाम हो, वो कहलाता है इसमें अलम। जैसे जैद एक खास शख्स का नाम होता है, जैद, अमर, बकर, राशिद, ठीक है, खास शख्स का नाम है। इससे इंसान की पूरी आपके सामने एक पहचान आपको हो जाती है। मक्का तू खास शहर का नाम है, मक्का वो जगह जहां हज होता है, जहां खाना काबा है, खास शहर का नाम है। अन नहबू खास फन का नाम है। अन नहब जब आप कहते हैं तो इसका मतलब एक खास फन का नाम है। और ये इल्म नहव ही है जिसका सबक एक आप पढ़ रहे हैं, नकीरा और मारिफा। अच्छा जी, दूसरी किस्म है इसमें जमीर। इसमें जमीर कहते हैं वो इसमें मारिफा जो मुतकल्लिम, मुखातब या गायब पर दलालत करे। गायब पर दलालत करे। ऐसे भी दलालत होती है, इशारतन भी इसकी दलालत होती है। अच्छा, इसमें जमीर को मुजमर भी कहते हैं। अरबी किताबों में आमतौर पर इसमें जमीर को इसमें मुजमर लिखा होता है, तो तलबा परेशान होते हैं। तो आपको नाम जहन में होना चाहिए। जैसे मैंने जमा का बताया था कि जमा को मजमू भी लिखा कहा जाता है, इसी तरह जमीर को मुजमर कहा जाता है, ठीक है। इसी तरह तस्निया को मुसन्ना कहा जाता है। इस तरह वाहिद को मुफरद कहा जाता है। तो ये नाम जो है ना, दूसरे नाम, ये भी ज़हन में रखें, ताकि अरबी किताबें जब आप पढ़ें या उर्दू में ही आपसे कोई पूछता है तो आपको पता होगा, तो यकीनन आप बता सकेंगे। तो इसमें मारिफा, इसमें जमीर जो मुतकल्लिम, जैसे मैं बात कर रहा हूं तो मैं कहूंगा ना मैं, तो ये मुतकल्लिम है। मुखातब यानी आप, उर्दू में हम आप कहते हैं, तुम कहते हैं, तू कहते हैं। गायब, गायब का मतलब वो, उसने, ठीक है, वो बंदा, वो किताब, तो ये गायब कहलाता है। इसकी मिसालें देखें, जैसे अना मैं, अंता तुम, हुआ वो। अब इसमें जमीर की भी पूरी गर्दानें भी इसकी हैं, इसका पूरा सबक भी है। इंशाअल्लाह जब ये सबक पढ़ेंगे जमायर वाला, जमीरों वाला, तो फिर आपको बहुत अच्छी तरह ये बातें समझ में आ जाएंगी।
अच्छा जी, तीसरे नंबर पर अच्छा अहम बात है कि ये भी याद रख लें कि इसमें जमीर के अलावा बाकी हर इसम को इसमें जाहिर या फिर मुजहर कहते हैं। इसमें जाहिर का दूसरा नाम है मुजहर। यानी या तो इसम दो ही तरह के होंगे, या तो इसमें जाहिर होगा या इसमें जमीर होगा। जमीर वाली ये चीजें ध्यान में रख लें कि इसमें मैं, तुम, वो, इस तरह की बातें होंगी इशारतन। और इसमें जाहिर के अंदर डायरेक्ट नाम होगा, जैसे जईदुन इसमें जाहिर है, मक्का तू अन्नाहु ये इसमें जाहिर है। अच्छा जी, उसके बाद तीसरे नंबर पर वो है इसमें इशारा। इसमें इशारा कहते हैं वो इसमें मारिफा जिससे किसी की तरफ इशारा किया जाए। अब किसी इंसान की तरफ भी इशारा किया जा सकता है, किसी बेजान चीज की तरफ भी इशारा किया जा सकता है, जानदार की तरफ भी इशारा किया जा सकता है। मुजक्कर करीब के लिए, अच्छा इशारा करीब के लिए भी होता है, दूर के लिए भी इशारा होता है। करीब के लिए जैसे मुजक्कर किसी चीज को अब इशारा करना चाहें करीब के लिए तो कहेंगे हाजा, जैसे हाजा किताब, ये किताब है। और मोनस के लिए हाजी। अच्छा जालिका, जालिका का मतलब वो, यानी आप दूर किसी मुजक्कर चीज के लिए इशारा करना चाहें तो उसके लिए कहेंगे जालिका। अच्छा बाज औक़ात किसी चीज की अजमत को जाहिर करने के लिए भी इशारा करीब वाली चीज की तरफ इशारा जालिका इसमें इशारा के जरिए किया जाता है। जैसे आपको मैंने मिसाल दी जालिकल किताब ला रईब फी, कि ये वो बुलंद रुतबा किताब है या वो बुलंद रुतबा किताब। तो यहाँ अल किताब कुरान की अजमत को जाहिर करने के लिए ये इसमें इशारा जिक्र किया गया। बहरहाल जब इसमें इशारा का सबक पढ़ेंगे तो मजीद इसकी तफसील आपको समझ आ जाएगी। चौथे नंबर पर वो है इसमें मौसूल। इसमें मौसूल वो इसमें मारिफा जो बाद वाले जुमले से मिलकर किसी जुमले का जुज बनता है। याद रखिए इसमें मौसूल के बाद एक जुमला होता है, वो जुमला या तो जुमला इस्मिया होता है या जुमला फेलिया। इसमें मौसूल उस जुमले के साथ मिलकर, यानी तरकीब इसकी तरकीब कलाम में मिलकर, तो ये जुमले का एक जुज बनता है। जुमले का एक जुज यानी फाइल बनता है या मफूल बनता है या नाइबुल फाइल बनता है वगैरह। इस अंदाज से एक जुमले का जुज बनता है, मुकम्मल जुमला ये नहीं होता। मुजक्कर के लिए जैसे अल्लदी वो जो, और मोनस के लिए अल्लती, इसके भी पूरा इसका सबक है इसमें मौसूल वाला। इंशाअल्लाह जब आप पढ़ेंगे तो फिर आपको आसानी से बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। उसके बाद पांचवें नंबर पर वो है मुअर्रफ बिल्लाम। मुअर्रफ बिल्लाम का मतलब क्या है? वो इसमें नकिरा जिसके शुरू में अलिफ लाम हो। जिसके शुरू में अलिफ लाम हो तो वो इसमें नकिरा अब इसमें मारिफा बन जाएगा। जैसे अल किताब, अब पहले किताबुल नकिरा है, इससे पहले अल लगा दिया, अलिफ लाम लगा दिया, तो अल किताब हो गया खास किताब। तो मुअर्रफ बिल्लाम, मुअर्रफ बिल्लाम के लफ्जी माना पर गौर करें कि वो इसमें नकिरा जिसको अलिफ लाम के जरिए, लाम सिर्फ जिक्र किया गया, मुराद बिल अलिफ वल्लाम है, यानी कि जिसको अलिफ लाम के जरिए मारिफा बनाया गया हो। ठीक है, जिस इसमें नकिरा को अलिफ लाम के जरिए मारिफा बनाया गया हो उसे कहते हैं मुअर्रफ बिल्लाम। अच्छा जी, उसके बाद छठे नंबर पर वो है मुअर्रफ बिल इजाफा। मुअर्रफ बिल इजाफा यानी इजाफत के जरिए जिसको मारिफा बनाया गया हो, यानी वो इसमें मारिफा जो सॉरी वो इसमें नकिरा जो इसमें मारिफा की तरफ, जो इसमें मारिफा की तरफ मुजाफ हो। ठीक है, वो इसमें नकिरा जो मारिफा की तरफ मुजाफ हो तो उसको कहते हैं मुअर्रफ बिल इजाफा। यानी होता तो इसमें नकिरा है लेकिन मारिफा की तरफ इजाफत करके वो खास हो जाता है। इसको यूं समझिए कि एक बंदा आम होता है, आम की निस्बत जब खास की तरफ होती है तो उस आम के अंदर भी खुसूसियत पैदा हो जाती है। जैसे कलमुन, कलमुन का मतलब आम कलम, किसका कलम, कैसा कलम, कुछ पता नहीं। लेकिन जब कलम की निस्बत जैद की तरफ की गई, जैद एक शख्स का नाम है, कलम जैदिन, जैद का कलम, तो अब कलम हो गया खास, कलम हो गया खास। अब मिसाल के तौर पर एक वैसे कुछ चीज होती है लेकिन वही चीज किबला अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार कादरी दामत बरकातुम लालिया के हाथ में है, तो आप अब उसी चीज को फरमाते हैं भी ये चीज कौन लेगा। तो अब चूंकि निस्बत उसे अमीर अहले सुन्नत से हो गई तो अब उस चीज की वैल्यू बहुत बढ़ गई। इसी तरह मक्का एक आम शहर है लेकिन जब इस मक्का को निस्बत नबी पाक अलैहि सलाम से हो गई, जब इस मक्का को निस्बत खाना काबा से हो गई, मस्जिद हराम से हो गई, तो अब इस मक्का की क्या हो गई, अजमत बढ़ गई। तो निस्बतों की बड़ी बरकतें हैं। बेनिस्बत जो लोग होते हैं ना वो बेचारे दर दर ठोकरे ही खाते हैं। तो इसलिए अल्लाह वालों से निस्बत इंसान को दुनिया में भी काम आती है, आखिरत में भी काम आती है। निस्बतों की बड़ी बरकतें हैं, बहुत सारी इस पर गुफ्तगू हो सकती है। सिर्फ एक कुरान से एक मिसाल दे देता हूं ताकि आपके लिए फायदा हो। अब देखिए कुत्ता एक
नापाक जानवर है, लेकिन जब ये कुत्ता असहाबे कहफ से निस्बत रखता है तो इसका जिक्र कुरान में भी आता है, इसकी अजमत को भी बयान किया जाता है इस कुत्ते की। ठीक है, तो ये अल्लाह वालों से निस्बत की बरकतें हैं। 7वें नंबर पर वो है मुअर्रफ बिन निदा। मुअर्रफ बिन निदा यानी हरफे निदा के जरिए जिसको मारिफा बनाया गया हो, यानी वो इसमें मारिफा जिसके शुरू में हरफे निदा हो, वो इसम जिसके शुरू में हरफे निदा हो। अब ये इसम मारिफा भी हो सकता है, इसम नकीरा भी हो सकता है। जैसे या रजुलु, ए मर्द। अब रजुलुन ये नकीरा था लेकिन शुरू में हरफे निदा लगाया गया, तो हरफे निदा के जरिए अभी क्या हो गया, ये मारिफा हो गया। तो ये इसमें मारिफा की 7 किस्में जो मैंने आपके सामने बयान की हैं। अहम बात ये याद रख लें कि इसमें मारिफा के अलावा बाकी तमाम अस्मा नकीरा होते हैं, ये बड़ी अहम बात है। मिसाल जैसे अब्दुल गुलाम या बंदा, मुमिनुन ईमान वाला, मोमिन, तिफलुन बच्चा, रजुलुन मर्द। इसके अलावा हजारों मिसालें हो सकती हैं। अब आपको सादा सी अहम बात या खुलासा आपको बयान करूं। आप देखिए इसमें नकीरा की पहचान आपको कैसे होगी। इसमें नकीरा की पहचान आपको होगी कि इसमें मारिफा में से कोई नहीं तो ये इसमें नकीरा है, इसमें मारिफा की 7 अकसाम में से कोई नहीं तो इसमें नकीरा है। ठीक है, नंबर 1। इसमें मारिफा की पहचान कैसे होगी, इसमें मारिफा की पहचान आपको मारिफा की 7 अकसाम के जरिए होगी। जब भी आप किसी इसम को कहेंगे ना ये मारिफा है, तो आपसे दलील पूछी जाएगी, दलील क्या है, तो दलील के तौर पर आप कहेंगे इसमें मारिफा की ये फुला किस्म है। तो फिर इससे क्या होगा, सामने वाला समझ जाएगा कि आप माशाल्लाह इस चीज को समझते हैं और आपको फहम है, इदराक है। तो ये नकीरा और मारिफा के बारे में अहम बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की हैं। अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए, दोनों जहां की बरकतों से माला माल फरमाए।